Hello and welcome everyone. Hello everyone. I am CA Achal Junjunwala and I am super excited to be with all of you today. We are here to discuss everything and anything about law in CA Foundation. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई है, मैम लॉ का सब्जेक्ट कैसे टैकल करना है। तो अगले 1 घंटे में हम और कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। We are only and only going to focus on the subject of law for CA Foundation June September attempt students. Okay, so make sure that you are sticking till the end of this webinar because इस webinar में हर एक मिनट आपके लिए valuable होने वाला है. Okay, so before we begin, I would love to see everyone on camera. Please turn on your camera. Please turn on your camera, everyone. Chalo, let's make this a little interactive here. Turn on your camera so that we can see you, we can interact with you. Maza aane wala hai, theek hai? Yes, lovely to see some familiar faces. Lovely to see you on camera. Thank you, Keshav, Tasifa, Sudesh, Vishaka, Vibhuti, Bhumika for turning on your cameras. Pankaj, I can see you now. Everyone else, please turn on your camera. Jaldi, jaldi. Varad, Ankita, thank you for turning on. Wonderful to see you. Radhe, thank you for turning on. Dhruvil, Ajay, Prerak, Dhruvil, Yash, superb. Lovely to see some familiar faces. Welcome back, everyone. I am Sia Achal Junjunwala. I am a qualified chartered accountant. I love the exams of chartered accountancy, which is why I mentor CA students to help them crack their CA exams. We've been mentoring students all across the globe who want to prepare for the CA exams. Today, we are discussing in a very special webinar on students' request that, ma'am, how to study law in 1.5 days. That is the topic of today's webinar, and we have India's best faculty who is going to take us through this process step by step. Okay, so are you all excited? Type yes in the chat box. If you're excited for this webinar, jaldi type yes in the chat box. We would love to see your responses. Chalo, jaldi. Superb. Yes. Wonderful. Lovely to see lots of excitement in the chat box. Now, tell us in the chat box, which city are you joining in from? Where are you joining in from and when is your attempt? आपका CA Foundation का एग्जाम कब है? June 24 में है, September में है, when is it? We have people joining in from Delhi, Mumbai, Thane, Surat, Vadodara, Dhure, Ahmedabad, Guwahati, okay, Pune, Jalna, Jalgaon, Mumbai, okay, Rajasthan, Parbhani, all right, superb, Ajmer, Surat, Amravati, Haryana, Vapi, Ghatkopar, Surat again, Delhi again, Nashik, Haryana, Solapur, Nanded, superb, Mumbai, Chhattisgarh, California, okay, superb, Sikandrabad, Maharashtra, Ahmedabad, Pune again, Mumbai, Virar, Mumbai, superb. So all over India say we have students. Kolkata se bhi hai. Superb. Thank you for joining us today in this webinar. All right. Now, again, if you have not mentioned, please tell us which attempt, June 24 या September. This session is relevant for everyone, whether you are in June 24 or you are in September 24. Okay, this session is relevant for you. Okay, I can see maximum of you are from June 24 attempt. So, sir, I know you are listening and you're reading the messages. Exams star pe hai, and excitement levels high hai, anxiety levels bhi high hai. We want guidance on how to kickstart law in 1.5 days. But before I bring on sir, let me tell you a little bit about him. Okay. If you get the opportunity to learn directly from a faculty at ICAI, how will you feel? Tell me in the chat box. Come on. If you get an opportunity to learn directly from a faculty who teaches at ICAI, blessed. Tanya, yes, we are all blessed to have confident. We will feel confident क्योंकि ICAI के faculty हमें बता रहे हैं. Blessed मिलेगा, best हो जाएगा. We are feeling so lucky. Vishwanath sir is the best for law. Okay, some people already know you, sir, which is amazing. King of law, Janvi is saying
He is one of the best. Palak is saying, biggest fan. Ellie is saying, Lord Vishwanath. Vishwanath sir is the godfather. Lord Vishwanath, we are lucky. Law ka Raja. So students already know you, which is amazing. But I have to tell you, he is one of the professors who has done a record-breaking MCQ marathon. Okay, 600 marathons within 3 hours on YouTube. He is one and only one in India to do this. Okay, and he is here to address you all. He's a faculty with ICAI. Over the last 6 years, he's been teaching law passionately, and he's a faculty at various eminent colleges in Mumbai. मैं खुद मुंबई से हूँ, मुझे पता है मिठी भाई और एनएम का क्या वैल्यू है within Mumbai. So he's a faculty at those colleges. So we are blessed indeed to have CA Vishwanath Sharma joining us today for this webinar. Welcome, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Thank you so much. Thank you so All much. right. Hello, everyone. I think most of them को मैं जानता हूँ. Many of them new for me, obviously. I know बहुत सारे questions दिमाग में already हैं. आपके काफी सारे messages मेरे पास already आ भी चुके हैं with regards to the doubts hovering in the mind. Right. I think हम हर एक चीज को आज क्रैक करेंगे इस सेशन के अंदर for sure. कुछ बातें obviously ऐसी भी है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जो I think is very much common सभी बच्चों के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सर हम पेपर के बीच में लाइक सेक्शन नंबर कोड करना होता है कि नहीं करना होता. अगर सेक्शन कोड नहीं करते तो मार्क्स करते हैं कि नहीं करते. ठीक है, द मोस्ट कॉमन डाउट दैट इज देयर. सर केस स्टडी क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. सर ब्लैक पेन यूज करना होता है या ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं. सो मेनी थिंग्स. ठीक है, तो मुझे आपके डाउट्स मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी पता है. मैं एक एक करके सबको ऑब्वियसली ट्रबल शूट करूंगा यहाँ पे आपके सामने. एंड अगर मैं कुछ मिस कर भी देता हूँ तो आप मुझे प्लीज एक बार बता दीजिएगा, हम उसको भी फॉर श्योर सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, वी So we ऑब्वियसली will have a live Q&A at the end. So I can already see, sir, there are certain students who are messaging in the chat. I have a question. I have a question. So this is for everyone. Please stay till the end. अगर आपके questions already sir cover नहीं कर रहे हैं, you will have an opportunity to directly speak with sir at the end of the webinar. Okay, we will have a live Q&A. Yes. So thank you so much, sir, for being here. Let's dive straight into the Q&A. Yes. Can I start shooting the questions on behalf of the students, sir? Yes, ma'am. Please. All right. ठीक है. So, sir, सबसे पहला सवाल students का ये है, case study questions. How do we approach them in the exam? हमें case study समझ तो आती है, sir, लेकिन उसको लिखना कैसे है? How do we understand which case law, how to present the answer? Okay. Ma'am, can you just share my screen? Is it okay? Sure, sir. Please go ahead. मैम आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी एक आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे बताने के लिए दैट हाउ एग्जैक्टली यू नो प्रेजेंट द आंसर. तो मैंने ऑलरेडी एक लाइक पेज बना रखा है जिसके अंदर आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑलरेडी. कि आप सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे कॉमन गलती होती है, सेंटर ऑफ द पेज पे यू राइट आंसर नंबर 3 का ए. बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A. नो, यू कैन नॉट डू सो. आप आंसर कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी आंसर नंबर 3 का ए, एंड दैट शुड बी वेरी मच कॉन्स्पिक्यूअस. मतलब जो इजिली दिख जाए. यू नीड टू नो द नेट टू द पेपर चेकर के ओके आप किस चीज को आंसर कर रहे हैं. देन यू हैपन टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर विच इज रेलेवेंट प्रोविजन. दिस इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम, जहाँ पे आप अपने सारे सेक्शन नंबर कोड करते हैं, जहाँ पे आप अपना केस लॉ कोड करते हैं इन केस उस क्वेश्चन में वो हिट कर रहा है तो. एंड अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आता, इट इज 100% ओके. लेट मी टेल यू, आप सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं, ऑब्वियसली सेक्शन नंबर आने चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ. लाइक मैं तो मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट मान लेते हैं आपको अब तक नहीं आता, इट इज 100% ओके. यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अरे इतना तो लिख ही सकते हैं ना, दिस इज बेयर मिनिमम. तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट विथ. तो आपका जो पहला पैराग्राफ होगा दैट विल बी दिस विच इज रेलेवेंट प्रोविजन. वहां पे आपने लिखा सारा का सारा जो भी क्वेश्चन के अंदर लॉ हिट कर रहा है, प्रोविजन हिट कर रहा है. उसके बाद आप आएंगे फैक्ट ऑफ द केस के ऊपर. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू एक अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सीक्रेट. वन ऑफ माई नोन इज अ पेपर चेकर. ठीक है, किसी को बताना मत, ये अनएथिकल है. ठीक है, वो तो मैम यहाँ पे है, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं आप सोचा कि एक सीक्रेट लीक कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, सो वन ऑफ माई वेरी मच नोन इज अ पेपर चेकर एट ICAI. तो उनको गाइडलाइंस आती है कि आपको किस तरह से बच्चे को मार्क्स देने. तो उसमें से एक हैक ये है कि अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उसको अपनी लैंग्वेज में वापस से कॉपी करते हो, उसका आपको 1 मार्क मिलता है. जस्ट इमेजिन, आपने क्वेश्चन बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, 7-8 लाइन का कोई क्वेश्चन है, आपने उसको समराइज करके
3 या 4 लाइन में प्रेजेंट करना है, एंड उसका आपको पूरा 1 मार्क मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, फ्री के मार्क्स है सर। सर उसका 1 मार्क हमें दिया क्यों जाता है? जस्ट आपने प्रूव कर दिया कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, एंड दैट इज व्हाट इज यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, फैक्ट ऑफ द केस। एंड फाइनली वेयर यू गो इज द कंक्लूजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंक्लूजन के अंदर आपका जो भी फाइनल आंसर है आप उसको अंडरलाइन करें। अब इसके अंदर भी एक कैच है। सी, इफ यू आर 100% श्योर विद रिगार्ड्स टू योर आंसर, आपको उसको अंडरलाइन करना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार शायद मेरा कंक्लूजन राइट नहीं है, प्लीज डोंट अंडरलाइन। वो तो पता है कैसा हो जाएगा, आप पेपर चेकर को बोल रहे हो सामने से कि देख मुझे नहीं आता, देख मुझे नहीं आता, यू कैन नॉट डू सो ऑब्वियसली। तो इन केस यू आर 100% कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा आंसर राइट ही है, जो मोस्ट ऑफ द केस में कॉन्फिडेंट ही होते हैं, आपको उसको ऑनलाइन करना चाहिए, अदरवाइज आपको ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। सो एक बार प्लीज ये देख लो प्रेजेंटेशन, आई थिंक आपको ये पता होगा, इन केस नहीं पता इट इज 100% ओके, आपको अब पता पड़ गया। द फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी रेलेवेंट प्रोविजन, जहां पे आप सारा का सारा जो भी प्रोविजन लग रहा है, सेक्शन नंबर, केस लॉ, जो भी लग रहा है आपने उसको लिख दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस विच विल बी नथिंग बट क्वेश्चन का ही समरी, एंड लास्टली वी हैव कंक्लूजन। आप इस 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने केस स्टडी क्वेश्चन को। प्लीज थियरी क्वेश्चन में करके मत आना, दिस इज फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस। सो आई थिंक मैम मैंने आंसर कर दिया जो पहला सबसे क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव But आंसर्ड इट ऑलरेडी। can we, I hope it's okay that students are taking screenshots of your या speech. 100%, या Yes. 100% श्योर, So या students, please keep taking screenshots. This is valuable information. अंदर की खबर आपको मिल रही है यहाँ पे. So please keep taking screenshots. Okay. यू कैन टेक द Thanks. स्क्रीनशॉट, मैंने आपके सामने ओपन रखे रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले Yes. सकते हैं फॉर श्योर। मैंने यहाँ पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया कि सपोज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। 3 मार्क का आपका रेलेवेंट प्रोविजन का होगा, 1 मार्क आपका फैक्ट ऑफ द केस का होगा, और 1 मार्क आपके कंक्लूजन का होगा। Right. Thank So you, please sir. take the screenshot for sure. Now, the next question, sir, that a lot of students face is कि समझ तो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट लेकिन याद नहीं रहते, राइट। थियोरी का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे, एक तो लॉ में सेक्शंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे एक्ट्स है। हाउ डू वी रिमेम्बर देम एंड रिट्रीव देम इन द एग्जाम? See, if this is the attempt of yours जून के अंदर, तो आई थिंक द टाइम हैज गॉन, कि जब आप चीजों को याद करेंगे, surely the time has been gone. Okay, let me be very brutal honest. What you can right now do is, मेरे हिसाब से आपका एग्जाम जो 20 तारीख को है अकाउंट्स का, आपको अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से 14 या 15 को। मेरे हिसाब से 6 दिन सफिशिएंट है अकाउंट्स को देने में, बिकॉज यार हम 11 12 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड इतना कुछ टफ भी नहीं है। अगर मैथ्स होता ना तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है आप 10 से स्टार्ट कर दो, पर ठीक है अकाउंट्स ही है, तो अब लास्ट के 5 डेज 6 डेज अकाउंट्स करें, दैट इज मोर देन गुड। तो अभी आपके पास जो टाइम है ऑलमोस्ट 1 वीक, आपको कम से कम 4 आवर्स पर डे लॉ को देना चाहिए। 4 आवर्स लॉ, अराउंड 4 आवर्स मैथ्स, और फिर 1 घंटा या 2 घंटा इकोनॉमिक्स, मेरे हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड लॉ इज समथिंग जो आपको सुबह उठ के फ्रेश माइंड से पढ़ना चाहिए। और ये सब मिथ होता है, कोई आपको ऐसा बोलते हैं ना सुबह 5 बजे उठना चाहिए, 6 बजे उठना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप 11 बजे उठ रहे हो, इट इज परफेक्टली फाइन, बट जब आप उठ चुके हो उसके बाद फिर आपको लॉ पढ़ना है 4 घंटे। एंड ऑब्वियसली 11 बजे उठ रहे हो मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ रात को 4-5 बजे सोए होंगे, ठीक है। 6 आवर्स इज मोर देन गुड आपके लिए, द स्लीप मैक्सिमम 7 आवर्स, उससे ज्यादा आप नहीं सो सकते। एंड द फर्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग इज, आपका जो 2 से 5 का टाइम होता है, स्पेशली इफ यू आर अ गुज्जू, जनरली हम उस टाइम पे सो जाते हैं, ठीक है। आड़स આવી જાય છે, આપણે 1 કલાક ઊંઘી જઈએ, गुज्जूस में जनरली ऐसा होता है। यू कैन नॉट डू सो सर। 2 to 5 हैज टू बी द टाइम जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपका बॉडी एक मैकेनिज्म है, ठीक है, एक मशीन है, इसको आपको अभी से ट्रेन करना पड़ेगा कि आपका 2 से 5 का जो टाइम है, दैट हैज टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव 3 आवर्स ऑफ द होल डे। तो 2 से 5 में अगर आप सो रहे हैं तो आपको अब नहीं सोना है, दैट इज फॉर श्योर। यस Right. मैम। Thank you so much. Now, section numbers we discussed, right? Section numbers कितना important है, right? As chartered accountants, we are expected by ICAI, but is it still important at foundation level? क्या हमें section numbers याद रखने हैं और उसको लिखने हैं? सी आई टेल यू ऑनेस्टली, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, गधा मजदूरी नहीं कर सकते। इफ आई हैपन टू टेल यू, जो लोग बच्चे एक बार लॉ पढ़ चुके हैं उनको समझ में आएगा कि जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, अब उसके अंदर देयर आर सो मेनी सेक्शंस, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब अराउंड 69 तक तो बुक में दिया हुआ है आराम से। अब आपको ऑब्वियसली वो 60 एंड 70 सेक्शंस नहीं आने चाहिए, कुछ 10 सेक्शंस है जो काम के हैं। लेट मी जस्ट टेल यू फटाफट फटाफट। वी हैव सेक्शन नंबर 4 विच इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपको डेफिनेटली वो आना ही चाहिए। देन वी हैव सेक्शन नंबर 7 पार्टनरशिप विल, आपको आना ही चाहिए।
थोड़ा सा उसमें आगे जाएंगे, आपको दिखेगा सेक्शन नंबर 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, आपको आना ही चाहिए। सेक्शन नंबर 28 पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, आपको आना चाहिए। सेक्शन नंबर 29 राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, आपको आना चाहिए। सेक्शन नंबर 30 राइट्स ऑफ अ माइनर, आपको आना चाहिए। सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, आपको आना ही चाहिए। सेक्शन नंबर 69 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, आपको आना ही चाहिए। तो अराउंड मैंने को 7 या 8 सेक्शन बोले और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन इनमें से कोई क्वेश्चन आता है एंड आप ये सेक्शन नंबर कोड करके आते हैं, पेपर चेकर को क्या लगेगा कि मां कसम ये बच्चा क्या पढ़कर आया है, जबकि रियलिटी क्या है, अरे मैं तो कहीं 10 सेक्शन ही पढ़कर आया हूं, उसमें से एग्जाम में आ गया। ये उसको थोड़ी पता है, ये तेरे को पता है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं ना। तो क्यों सारे 70 सेक्शन याद करने की ट्राई कर रहा है? मैं तेरे को 10 सेक्शन बता रहा हूँ, वो 10 सेक्शन याद कर ले, उसमें से एग्जाम में आएगा और तू कोड करके आ जा। पेपर चेकर को लगेगा कि यार मां कसम बच्चा क्या पढ़कर आया है, जबकि मैं तो स्मार्ट वर्क करके आया हूँ। सेंसिबल। Right, absolutely. I think this is a very good strategy, sir, to do smart work instead of doing the hard work in the final days of examination, right? All right. The next question is, sir, क्या हम answers अपने words में लिख सकते हैं? And अगर 100% नहीं तो यस। how can we improve this? 100% यस, आपको अपना जो भी लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं फॉर श्योर। बट अगेन द स्मार्ट वर्क वुड बी, आप बड़े बड़े लेंथी पैराग्राफ्स बना के नहीं आ सकते। लेट्स से इट इज अ थियरी क्वेश्चन, ठीक है। सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं। अब आप उन पॉइंट्स को ऐसे बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के नहीं आ सकते। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, आप थोड़ा स्पेस छोड़ो, प्रॉपर लाइनिंग वाइनिंग बनाओ, स्पेस छोड़ो। अगर नेक्स्ट पेज पे आंसर जा रहा है, प्लीज पीटीओ लिखो। दीज आर ऑल दोस एटिकेट्स जो आपको एक एज देंगे ओवर दी अदर्स। अनलाइन करो चीजों को एंड योर आंसर विल बी द बेस्ट। तो थियरी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उसको ऐसे कम्बरसम नहीं बना सकते। पेपर चेकर को सर 5 मिनट मिलता है, 6 मिनट मिलता है आपका फ्यूचर डिसाइड करने में। उस 5 या 6 मिनट के अंदर आपको अपना पेपर बेस्ट पॉसिबल वे से प्रेजेंट करना होता है। जितना आप उसका काम इजी करोगे, उतना इजीली आपको मार्क्स मिलेगा। यू हैव Absolutely. टू सेल योरसेल्फ। तो योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट फॉर श्योर, एंड आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, इट इज 100% ओके। पर जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, जैसे वॉइड हो गया, वॉइडेबल हो गया, फॉरबेरेंस हो गया, वो कुछ वर्ड्स तो आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम बीकॉम का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं जिसका रिजल्ट 100% आता है। हम लोग दे रहे हैं सीए का एग्जाम, फाउंडेशन का 25% आता है। तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल लैंग्वेज एट टाइम्स यूज करना पड़ेगा। बाकी इट कैन बी फॉर श्योर योर ओन वर्ड्स 100%। राइट सर, इसके लिए द ट्रिक दैट आई यूज्ड टू यूज एज अ स्टूडेंट, जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी सीए में, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू create a list of these technical words, a whole हाँ list हाँ of these हाँ। technical words for each chapter, and then उसको ना हम लोग एक ग्लिटर के जैसे यूज करते थे, राइट? कि हमको ये वर्ड्स ना हर आंसर में कहीं कहीं डालने, ट्रू। राइट? ओन जी वर्ड के बीच में हमको थोड़ा थोड़ा स्पार्कल डाल देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मार्क्स अपने आप दे देगा, राइट? जी। So 100%। yes, so I think own words में लिखो, but technical words are important. सर, एक डिमांड आ रही है बच्चों की चैट बॉक्स में, जो सेक्शन नंबर्स आपने कहे अभी, इंपॉर्टेंट जी सेक्शन नंबर्स जो याद करके जाने हैं, कैन वी गेट अ लिस्ट ऑफ दोस सेक्शन नंबर्स सो दैट फॉर फ्यूचर रेफरेंस? 100%। हाउ डू आई कम्युनिकेट I ऑल द will, चैप्टर्स? yes, yes, through us. So what we can do is we can compile that list and we can share it with the students. Done. As soon as the session gets over, I'll just send you that list. Although Yes, मैंने पार्टनरशिप का तो बोल ही दिया, बट बाकी चैप्टर्स का I'll just send you and वो आप बच्चों तक फॉरवर्ड कर देना फॉर श्योर। yes, yes. So students, we will be sharing it in our Telegram channel. Telegram की लिंक मैं शेयर कर दूंगी जिसपे सर का कंपाइलेशन वी विल बी शेयरिंग, ओके? सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट कंपाइलेशन विद अस। बच्चों के लिए बोनस हो गया ये, बहुत बोनस हो गया और सर। अटेंडिंग द सेशन ये बोनस हो गया, ठीक है, हाँ, अनएक्सपेक्टेड। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। सर, या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, बट उसमें से कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं, आता है उनको प्रोविजन बट दे डोंट रिमेम्बर द एंटायर आंसर। सो उस सिचुएशन में क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? शुड दे लीव द आंसर? व्हाट शुड दे डू? मैम देखो कैसा होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, थियरी को हम रिस्पेक्ट नहीं करते। इन द सेंस, सपोज आप अपना अकाउंट्स का क्वेश्चन लाइक सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो आप एक बार मन में सोचते हो कि हाँ मैं ये लेजर बनाऊंगा, ये लेजर बनाऊंगा, ये लेजर बनाऊंगा, एंड देन यू हैपन टू स्टार्ट। थियरी में कोई इज्जत ही नहीं देता। थियरी में लिखना स्टार्ट कर देते, बाद में हाँ हाँ हाँ, ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस। टेक 5 सेकेंड्स, एक बार सोच कि तेरा फ्रेमिंग ऑफ आंसर किस तरह का होगा। जैसे तू प्रैक्टिकल को इज्जत देता है, मेरे थियरी को भी इज्जत दे। 5 सेकेंड सोच एक बार कि हाउ एग्जैक्टली आई विल फ्रेम दिस पर्टिकुलर आंसर, एंड देन गो अहेड विद द सेम। अब जब तो फ्रेमिंग सोचेगा, यू विल ऑब्वियसली रियलाइज कि मुझे सारे पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। और आपको जो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिल रहे हैं,
दोस 15 मिनट्स आर गोल्ड। जब आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना नहीं होता, आपको सिर्फ एक डिसाइड करना होता है कि किस सीक्वेंस के अंदर आप अटेम्प्ट करने वाले हो अपना पूरा आंसर्स। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, एक्सपेक्टिंग आपको ऐसा पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन दैट कैन एवर बी देयर। आपको ऐसे देखने में लगेगा कि तो हलवा है, पर वो हलवा होगा नहीं, वो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो उसको छोड़ दे, उसको तू पढ़ भी मत वो 15 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से तुझे कोई भी 4 करने, द रिमेनिंग 5 यू नीड टू डू एनी 4 ऑफ देम। अब तू डिसाइड कर कि वो सीक्वेंस क्या होगा। यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, देन हॉप इनटू क्वेश्चन नंबर 2, देन गो टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन 3। कुछ भी चलेगा, इट वर्क्स। ऑल यू नीड टू मेक श्योर इज आप अंदर जो 5 का एबीसी है उसमें फिर चेंजेस नहीं कर रहे हो। मतलब यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस, मैंने 5 का ए करा फिर 6 का सी करा, नहीं। अगर आपने 5 स्टार्ट किया है तो 5 आप पूरा एक साथ ही करेंगे। फिर आप 3 पे मूव कर रहे हैं तो 3 का एबीसी जो भी आप अटेम्प्ट करें आप साथ में ही अटेम्प्ट करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यूज दोस 15 मिनट्स वेरी वेल। एंड क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़ना उसके अंदर, वो तो आपको वैसे भी करना ही है ना, उसको पढ़ के क्या ही फायदा होगा। 2, 3, 4, 5, 6 में से सिलेक्ट कर तू कौन सा क्वेश्चन नहीं करने वाला। मे बी सपोज फॉर एग्जाम्पल यू नो लेफ्ट आउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देख नेगोशिएबल का क्वेश्चन कौन से वाले क्वेश्चन के अंदर है, छोड़ दे वो, इट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा स्मार्टली डील करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन आया है, वरद हैज आस्क्ड इन द चैट बॉक्स व्हिच इज रिलेटेड टू आंसरिंग इन योर ओन वर्ड्स, राइट? आई बिलीव कि प्रोविजन जो है वो पार्लियामेंट बनाता है, तो उसमें शायद हम ओन वर्ड्स नहीं लिख सकते, राइट? सो किस हद तक ये सही है? लाइक कैन वी राइट द प्रोविजन आल्सो इन आवर ओन वर्ड्स या नहीं? सी एज फार एज डेफिनेशन गोज, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कोई रैंडम। सपोज हम बात करते हैं 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच गोज अबाउट फॉरेन कंपनी। मैं एक डेफिनेशन बोलता हूं। A foreign company is a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or electronically and conducts any business activity in India in any other manner। सांस लेता हूं। दिस इज द डेफिनेशन, ओके। अब ये जहां तक डेफिनेशन की बात करें, दिस हैज टू बी वर्ड टू वर्ड ऑब्वियसली। इसमें यू कैन नॉट प्ले विथ, इसमें आप खुद का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन पार्ट आप हर एक चीज अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इट इज 100% ओके। मैं आपको ये सेम लैंग्वेज इंटर में नहीं बोलूंगा। इंटर में आई विल बी मोर स्ट्रिक्टर ऑब्वियसली, कि जहां पे आपको बोलेंगे कि नहीं सर आपको वर्ड्स टेक्निकल वाले मेजोरिटी यूज करने हैं। अभी आप फाउंडेशन लेवल पे हैं एंड हम समझते हैं कि आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, तो वी ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट ना हाई लेवल का आपसे। हम जस्ट ऐसा एक्सपेक्ट करें कि जो एटलीस्ट जो डेफिनेशन होगा वो आप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे 80-90% एक्यूरेसी के साथ। डेफिनेशन के अलावा जो भी चीज है, जो भी प्रोविजन है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। यू हैव फुल फ्रीडम सर। राइट सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में कि मान लीजिए प्रोविजन हमने सही लिखा है बट कंक्लूजन गलत हो गया, तो क्या मार्क्स मिलेंगे? स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग जस्ट लाइक वी हैव इट इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जिसको आप इज्जत देते हो। थियरी सब्जेक्ट के अंदर भी आपका स्टेप मार्किंग ही होता है, ठीक है। आपने अगर प्रोविजन प्रॉपर्ली लिखा है, इन दैट केस यू गेट 3 मार्क्स फॉर दैट। एंड कंक्लूजन जो रॉन्ग है यू गेट 0 ऑब्वियसली। तो वी हैव आउटराइट, मैं आपके साथ चाहिए तो मैं आई कैन शेयर द पेपर आल्सो। मैम शेयर कर सकते हैं पेपर? जी इज जी इट जी। ओके? जी जी। ओके आई जस्ट शो यू एक स्टूडेंट का पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आईसीएआई का ही है, अगेंस्ट समथिंग अगेंस्ट द एथिक्स। बड़ा ठीक है, आज सब एथिक्स साइड में रखी दी हैं तो फिर इसको भी साइड में रख ही देते हैं। ओके, प्रोफेशनल एथिक्स वैसे भी फाइनल सीएम है सर, इट्स ओके। हाँ आई एग्री schedule 1 and 2 I still remember। Yeah, please have a look। This is one of the students, not mine obviously। उन्होंने मुझे पेपर शेयर किया था मेरे साथ एंड ही वाज जस्ट लेटिंग मी नो कि सर आप मुझे बता सकते हैं मार्क्स कहाँ पे कटे हैं। so उसका पेपर है, शी गॉट 32 मार्क्स आउट ऑफ 100, जिसमें लॉ एंड बीसीआर कंबाइन था। अभी तो सिर्फ लॉ ही है। तो जैसे मैं उसका पेपर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देख, द फर्स्ट मिस्टेक आई कैन टेल यू इज दिस गर्ल हैज स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एंड दैट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखकर उसने छोड़ दिया। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोच, तूने पहले ही पेपर चेकर को बता दिया कि यू आर लो इन कॉन्फिडेंस। एट द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स इज यू आर लो इन कॉन्फिडेंस, आपको नहीं आता। अब तूने आगे कितना भी अच्छा पेपर लिखा होगा, सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। एंड आपने यहीं पे बेसिकली सारा कबाड़ा कर दिया है। चल ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। हम आगे गए एंड आपका भी दिख जाएगा स्टेप मार्किंग। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑब्वियसली इट हैज सम बेसिस ऑफ द सेम। आपको दिखेगा यहाँ पे 3B स्टेप नंबर 1 1 मार्क, 3B स्टेप 2 1 मार्क। तो 3 मार्क का क्वेश्चन था, उसको आउटराइट 2 मार्क दिए हुए हैं, ठीक है। फुल मार्क्स नहीं दिए बिकॉज का पूरा आंसर राइट नहीं था, बट देन आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्टेप मार्किंग करा हुआ है। वन मोर थिंग दैट आई विल शो यू इज, जो मैंने उस बच्चे को करेक्ट करके दिया था, अंडरलाइन नहीं करा हुआ। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं यहाँ पे क्लियरली कि आपको जो मेन पॉइंट्स आपके आंसर के, आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो जहां भी मुझे लगता था उसको बच्चे को अंडरलाइन करना चाहिए था,
मैंने उसको अंडरलाइन करके बताया कि देखो आपने ये चीज गलत करी है, और यही सेम चीज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगेन, लीविंग द पेपर ब्लैंक इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू आपके एग्जाम के अंदर, कैन नॉट डू सो, ठीक है। इसे बोले बहुत स्मार्टली आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि आप कौन से आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख, स्टेप मार्किंग है थ्रू आउट, आपको दिखेगा मैं लिखा हुआ 4A स्टेप नंबर 2 1 मार्क, तो इट इज आउट राइट स्टेप मार्किंग। यस मैम। Right. Absolutely. So I think everyone, please make sure कि you are writing whatever you know. Okay. पहले अपना 40 secure कर लो. This is my strategy that I used as a CA student. कि पहले अपना 40 secure कर लो. Okay. And then start focusing on getting those extra marks by writing whatever you know. Okay. एक दो चीजें भी आ रही है तो एटलीस्ट लिख दो, छोड़ो मत. ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है कंक्लूजन या वो गलत हो जाएगा इसलिए वो पूरा आंसर ही हम छोड़ दें, ठीक है, वैसा नहीं करना है. इवन if आपको प्रोविजन आता है, कंक्लूजन गलत हो गया, मार्क्स मिलेंगे. सो प्लीज गो अहेड एंड राइट इट. ओके. एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी आया है चैट बॉक्स में. ओके. व्हाट इफ द सेक्शन नंबर इज रॉन्ग एंड द एंटायर आंसर इज करेक्ट? आई थिंक वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नो द आंसर, बट सीए फाउंडेशन लेवल You पे will lose marks. जीरो. Zero would be a bit harsh. I would not say zero मिलेगा, but then again, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 2 मार्क्स फॉर श्योर गए. तो अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं तो ही सेक्शन कोड करना, नहीं तो प्ले सेफ, प्ले सेफ, ठीक है. एंड आई थिंक सर एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो जीरो भी देने में वो राइट. रुकेंगे नहीं. बीवी राइट. से झगड़ा कर कर आया है, सारा गुस्सा आप पे निकलेगा सर, सारा गुस्सा. तो प्लीज Right, नहीं. absolutely. And see, this is true, okay? Section numbers, क्योंकि वो section वो चीज बोलता ही नहीं है जो आप बोल रहे हो, हम्म. right? That is the logic behind giving you zero. Okay, so please do not write wrong section numbers. Okay. Now, the next question here is, sir, how to score? Say, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें से हम मैक्सिमम 5 on 6 या 7 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 on 7 मिलते हैं क्या? And if yes, मैंने 7 on 7 भी तो देखा हुआ है. आई हैव सीन. मैं आपको बताऊं, लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जो सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 1 था, जय करके, ही वाज माय स्टूडेंट, ठीक है, मेरा लाइक पर्सनल ट्यूशन था उसका, ही गॉट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक. मतलब लोग बच्चे पेपर मंगाते हैं कब, जब उनके मार्क्स कम आते हैं. हमने भी उसका पेपर मंगाया था, मार्क्स ज्यादा कैसे आ गए, जस्ट टू चेक के मार्क्स कहाँ पे कैसे मिलते हैं. एंड आई विल टेल यू, 7 में से 7 भी मिला है एंड 6 में से 6 भी मिला है. एंड द ओनली रीजन इज अगेन द प्रेजेंटेशन, द सेक्शन नंबर्स एंड प्रॉपर अंडरलाइनिंग. तो उसी पे आपका फोकस होना चाहिए. मतलब आपने अपना आंसर मीडियोकर भी लिखा है, पर आपने उसको अगर प्रेजेंट अच्छे से करा है, ठीक है, स्क्रिबलिंग कम है, ठीक है, काटम काटी आपने जो करते हैं वो सब कम आपने कम करा हुआ है, आपने प्रॉपर पीटीओ लिखा हुआ है अगर आंसर नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, आपने स्पेसिंग प्रॉपर इंडेंटेशन प्रॉपर्ली करा हुआ है, इजीली मार्क्स मिल जाते हैं फॉर श्योर. ऑब्वियसली अज्यूमिंग आपने कंटेंट सही लिखा है, यू हैपन टू गेट फुल मार्क्स. Right. So I think this is a revelation. Generally एक misconception होता है स्टूडेंट्स को कि थियोरी पेपर्स में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं. तो सर ने अभी वो मिसकंसेप्शन क्लियर किया है. यू शुड टारगेट स्कोरिंग फुल मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन. Why 5 on 6? Why 6 on 7? 7 on 7, 6 on 6 मार्क्स हमें फोकस करना है, राइट? Now, sir, I think let's come to the major thing that a lot of students want is the 1.5 days strategy. कि अकाउंट्स का पेपर दे के हम आ चुके हैं, अब 5 बज चुके हैं शाम के, अब हमें क्या करना है? So everyone, please start making notes. Please start making notes. अभी जो सर बताने वाले हैं, these are the golden nuggets. आपको 1.5 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, ये सर अभी बताने वाले हैं. Sir, we can see the students' paper. We can still see the students' paper. No, I just wanted a blank screen. Okay, okay. सुनेगा यहाँ पे. I'll just let you know फटाक से एक बार. I think most of them might be knowing, but may not be all of them. मैं आपको एक बार फटाक से शेयर करता हूँ आपके जो वेटेज है चैप्टर्स का. लेट मी जस्ट शेयर इट फटाक से एक बार. इन केस यू नॉट डोंट नो इट, अगेन आपके लिए एक और बोनस हो गया, ठीक है. लाइक वी हैव दिस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच इज वर्थ 5 मार्क्स. मैं जा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. Then we have basically LLP, which is 10 marks. Then we have Negotiable Instrument Act, जो पहले सी इंटर में था, फाउंडेशन में आ चुका है, that is worth 15 marks. Then we have Partnership, which is 20 marks. Companies Act, 20 marks. Sales of Goods Act, 20 marks. And lastly, Contract Act, 30 marks. Total 120 होना चाहिए सर, ठीक है. 120 मार्क का आपका पेपर आता है.
और आपको उस 120 में से अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, मेड बी रिविजन और मेड बी दोज 1.5 डेज। मैं बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। व्हाट स्टूडेंट थिंग इज कि यार ये 30 मार्क्स का वेटेज है, लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द बिगेस्ट पॉसिबल ब्लंडर दैट यू कैन डू इज दिस। रीजन इज, सर जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा, आपकी श्रद्धा लॉ से खत्म हो चुकी होगी। इट इज 9 यूनिट्स, इट इज 160 पेजेस। जस्ट इमेजिन आप एग्जाम देकर आए अकाउंट्स के, एंड आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके बैठे और 160 पेज आप उसको पढ़ रहे हो, एंड आपको पता पड़ा कि पूरा दिन खत्म ही हो गया। अब अगले दिन टेंशन और एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा कि यार मेरे पास एक दिन बचा अब और मेरे सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। Indian Contract Act can never be the chapter that you happen to start with. Rather, it has to be somewhere in the middle or maybe at the end. अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, सब्रोगेशन की बात करें, अगर मैं आपकी जगह होता, I would have definitely started with Companies Act. This would be my number 1 point. सर नंबर 1 क्यों? सर अराउंड 31 पेज का चैप्टर है जिसमें आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। देख, पार्टनरशिप भी 20 मार्क का है, नंबर ऑफ पेजेस आर 45। सेल्स ऑफ गुड्स भी 20 मार्क का है, नंबर ऑफ पेजेस इज 65। तो स्मार्टेस्ट वर्क क्या हुआ, सब फटाक से कंपनी से उठाया 31 पेजेस मियरली, और उसमें मुझे 20 मार्क मिल रहे हैं। एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले करता डेफिनेटली कंपनीज एक्ट। सेकेंडली मैं करता पार्टनरशिप। नंबर 2 अगेन समथिंग विच इज इजी गोइंग, मे बी शायद एक या दो पोजीशन को डिफिकल्ट होंगे, बाकी नथिंग डिफिकल्ट। एंड क्योंकि मैंने कंपनी एंड पार्टनरशिप करा, थर्ड डेफिनेटली वुड बी एलएलपी, बिकॉज वो उन दोनों का हाइब्रिड है। And उसमें one of the favorite questions obviously ICAI का is difference between partnership versus LLP, company versus LLP। पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी के अंदर 15 पॉइंट है, कंपनी वर्सेस एलएलपी के अंदर 8 पॉइंट है, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 5.7 एंड 5.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आपने 3 चैप्टर कर लिए एंड यू आर डन विद ऑलरेडी 50 मार्क्स। और ये 50 मार्क्स कब हो गए पता है? जब आप एग्जाम देके घर पे आए हो। मतलब सपोज यू हैपन टू रीच लेटेस्ट बाय 6:30, अज्यूमिंग आपका सेंटर बहुत दूर है, आप 6:30 तक घर पे आए, 7 बजे तक आपने चलो थोड़ा फ्रेश हो गए, कॉफी वॉफी पिया, ठीक है, जो भी आपने किया, 7 बजे आप लेके बैठ रहे हो, 7 to 12 एग्जाम डे पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रात भर जगें, फॉर श्योर, सिर्फ एग्जाम दिन के लिए बोल रहा हूँ, आपको रात को नहीं जगना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपका हैम्पर होगा अगला डे। तो मैं 7 बजे स्टार्ट करता हूँ सर, और 7 बजे से लेके सपोज 12 बजे तक जितना टाइम है आपके पास, मैंने सिर्फ ये 3 चैप्टर ही करना है मेरा, और आपका 50 मार्क्स स्कोर हो गया। अब तो ये मत देख तेरे 7 में से 3 चैप्टर हुए, तो ये देख तेरा 50% सिलेबस हो गया। नेक्स्ट डे व्हेन यू हैपन टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू ऑब्वियसली हैपन टू स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने कहा था समवेयर इन द मिडल और मे बी एट द एंड, समवेयर इन द मिडल इज सजेस्टेड, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 9 में से आई अग्री जो नए यूनिट्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं, बट देन ऑल यूनिट्स आर नॉट डिफिकल्ट। जैसे यूनिट नंबर 1 हो गया वो बेसिक्स है, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन बेसिक्स है, यूनिट नंबर 3 फ्री कंसेंट बेसिक्स है। ये यूनिट्स को आप फटाक से अच्छे से कर लो, इसमें आपको बच जाएगा आराम से, नेक्स्ट डे का आफ्टरनून हो जाएगा। एंड फिर जो टाइम बच गया उसके अंदर आप कर सकते हैं सोगा, बिकॉज अगेन इट हैज कनेक्शन विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगले दिन सुबह के लिए मैं रखता डेफिनेटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिकॉज बहुत ड्राई है, एंड नेगोशिएबल अगेन क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई है, और एग्जाम के आप जस्ट पहले पढ़ रहे हो, उसके जो मॉर्निंग का टाइम है, तो आपको फटाक से एग्जाम में जाके सिर्फ वॉमिट करना है, उसको वापस से निकालना है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना है, तो इट वुड बी वेरी इजी। इन चैप्टर के अलावा बाकी सब चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट है, इन 2 चैप्टर में एज सच कोई खतरनाक कंसेप्ट नहीं है। तो ये 2 चैप्टर में करता, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 5 मार्क्स एंड नेगोशिएबल 15 मार्क्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम, मॉर्निंग 7 to लेट्स से 12 o'clock। जब मैं घर पे आया अकाउंट्स का एग्जाम देके, तब मैं करता कंपनी पार्टनरशिप एलएलपी, एंड नेक्स्ट डे को जो मॉर्निंग से लेके टाइम है रात तक का, कॉन्ट्रैक्ट एंड सोगा। दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ डूइंग द चैप्टर्स मेरे हिसाब से। Right. Thank you so much, sir, for sharing this. Grab a screenshot, everyone. Quickly grab a screenshot. इसको I'll make it more proper आपके लिए, just a second, screenshot मैं आपके लिए और अच्छे से कर देता हूँ, so that there is no ambiguity, vagueness, absurdness। 2 मिनट। नहीं, I will also be compiling a document on this and sharing it on our Telegram channel, because this I think is very, very useful to our students. Would you like a document on this 1.5 day strategy, guys? Please type yes in the chat box. If you want me to share a quick, nice document कि 1.5 days में अभी जो सर ने बताया उसको कैसे करना है. Okay, so yes,
लॉट ऑफ यू आर सेइंग यस 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 यस, ठीक है। सो मैं कंपाइल करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट, सुपर, यस। आई विल बी गिविंग इट टू यू ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम लिंक at the end of the webinar share ho jayegi, so please stay till the end so that you get all these links, okay? And there is a very nice surprise for all of you at the end. There's a free bonus, so please stick till the end. We will be sharing that at the end, okay? Okay, great. Ma'am, 1.5 days में extra questions read करें या chapters read करें? एक question आया सर। सी टेल यू, आपके सीए फाइनल तक ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ना फाउंडेशन में होगा, ना इंटर में होगा, ना फाइनल में होगा, ठीक है। द टाइम हैज गॉन जब आप बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइक आई टेल यू, जब मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 2 बचा हुआ था, आई हैड वेरी लेस टाइम बिकॉज ऑब्वियसली आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया था, जॉब स्टार्ट हो गया था, आई ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग इन मिठी बाई जब मेरा ग्रुप 2 बचा हुआ था। द ओनली स्ट्रेटेजी आई यूज्ड एंड आई ऑब्वियसली क्लियर्ड द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वाज, मैंने लास्ट 7 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड पास पेपर्स पूरा का पूरा 2 बार कर लिया था। एंड आई रियलाइज्ड कि एग्जाम के अंदर 80% पेपर 100% वहां से कॉपी पेस्ट होकर आया है। 80% पेपर, जस्ट इमेजिन। तो द टाइम हैज गॉन कि आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। बुक पढ़ के आपको ना कभी सा कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको कभी ऐसा लगेगा कि यार ठीक है मेरे को समझ में आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको, जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ आपको ऐसा रियलाइज भी होगा क्वेश्चन आंसर करते टाइम कि कितने सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो आपको लगता है आपको आते हैं, बट जब वही चीज क्वेश्चन आंसर्स में आती है तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। तो जो भी आपका बिट्स एंड पीसेस में कोई टॉपिक रह गया है, उसको क्वेश्चन आंसर्स पूरा कंप्लीट कर देता है। तो नाउ इज द टाइम जब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करने होते हैं। आपको आईसीए की वेबसाइट के ऊपर आराम से मिल जाएंगे लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के लाइक पास पेपर्स, 4 अटेम्प्ट्स की आरटीपी एंड आई गेस 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आपको उसका फिजिकल कॉपी करा लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली। एंड आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। जो मैं बोल रहा था ना सुबह उठ के आपको 3 घंटा 4 घंटा लॉ करना है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स ही करना है सर। मान लेते हैं आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए एंड उसमें से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, यू नीड टू मार्क देम, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करूंगा। मैं एग्जाम के एक दिन पहले वापस से पूरी बुक नहीं पढ़ सकता। अगर आपको कोई क्वेश्चन आज सपोज सेक्शन 33 के ऊपर क्वेश्चन आया, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर 3+3 उसमें 6 पॉइंट है, अगर आपको आज आता है 7 जून को, तो 22 जून को भी आ ही जाएगा ना। मतलब अपन गजनी तो नहीं है ना कि इतना 15 दिन में भूल जाएगा अपन। तो जो आपको आज आ रहा है वो 22 को भी आएगा, तो उसको क्यों वापस पढ़ूंगा मैं। आई वुड रादर मार्क दोस क्वेश्चन जो मुझे आज नहीं आए, मैंने उसको आज भी पढ़ा और उसको मैं वापस पढ़ेगा 22 तारीख को, 21 तारीख को, 20 तारीख को। यस मैम। Right. Thank you, sir, for sharing that. Now, there are a few students who have been asking in the chat box, and I think there's something that we have specially planned for those students, okay? There are students who feel nervous with respect to their exams, who feel कि हम blank out हो जाते हैं। उन्होंने prelims लिखे हैं अभी 100 marks के, आती हुई चीजें भी वो attempt नहीं कर पा रहे हैं। So for all those students, I have a special webinar coming on 14th of June, sir, where I will be talking about the ICAI filtering out process. ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, आपने भी देखा होगा सर आपकी क्लास में, द स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, बट जब उसका रिजल्ट देखते हैं हम, इट इज नेगेटिव। आई हैव हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, इंटर सीए AIR 6, फाइनल सीए अटेम्प्ट लग गया उसको। अरे बाप रे। Yes, imagine an AIR 6 having an attempt in final CA, fail हो गया वो जब उसने एग्जाम का रिजल्ट देखा। Why? Because ICAI filtering out process is not just based on those 3 hours. There are a lot of students जो एग्जाम देने के पहले ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट सही नहीं होता। जब वो जैसे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है, जैसे कि सर ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रिकी होता है वो, और वो कंपलसरी क्वेश्चन है, स्टूडेंट वो क्वेश्चन पढ़ लेता है और वहीं पे गिव अप हो जाता है उसका, आती हुई चीजें भी वो ब्लैंक आउट हो जाता है, राइट? सो प्लीज 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 स्टूडेंट्स, 14 जून को 8 बजे वो वेबिनार जरूर अटेंड करना, बिकॉज ऐसे और बहुत सारे स्टेजेस हैं जहां पे आप एग्जाम लिखे बिना फिल्टर आउट हो सकते हो। सो प्लीज, ओके, डू नॉट
do this mistake. I am going to specially host this webinar for you. Okay. So that is one part. Now, the other part is specifically related to law that I want to put to sir. Okay. Student has asked this question कि हमारा mindset क्या होना चाहिए लॉ के पेपर के पहले and during the exam. What should be our mindset? Okay. देख ब्लैंक आउट का तो आई बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है. इट इज नथिंग के आपके लिए कुछ नया हो रहा है. इट इज जस्ट दैट आपको कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एंड दैट इज द पॉइंट जब ब्लैंक आउट होता है कि आपको समझ में नहीं आया कि यार मैं इसमें करूँ क्या. एंड उसको भगाने के लिए मैं आपको बोल रहे हैं कि आप पहले से ही उन क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर लो. प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इट इज लाइक दिस कि सपोज क्रिकेट का मैच है, मैच के अंदर बाउंसर आने वाला है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक नॉर्मल डिलीवरी की, आप बाउंसर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. एग्जाम में बाउंसर आने वाला है, दैट इज क्यूएनए आने वाला है, तो आपको एग्जाम के पहले क्यूएनए का ही प्रैक्टिस करना है रादर देन डूइंग नो बुक में से रीड करने वाला पार्ट. एग्जाम में वो रीड करने वाला पार्ट कुछ काम नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर्स ही काम आएगा कि किस तरह से उसने अपना आंसर फ्रेम करा है, किस तरह से आंसर लिखा है, एंड हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द सेम. तो क्वेश्चन आंसर्स करना एग्जाम के पहले इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. और जब मैं बोल रहा हूँ 80% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, तो यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड गोइंग टू एग्जाम कि हाँ ठीक है आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन तो पहले से ही आते हैं, तो जो ब्लैंक आउट वाला सीन है वो नहीं होगा. वन मोर थिंग, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता आपने कहाँ से क्लासेस करी है कहाँ से नहीं करी, आपने एग्जाम के पहले कम से कम एक बार एक पेपर लिखना होता है सर, एक बार एटलीस्ट. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप वो आईसीए के ब्रांच में जाके लिखो या अपने क्लासेस में जाके लिखो, तो आराम से अगर शिद्दत से घर पे बैठ सकता है, ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है, नॉट विथ एनीवन एल्स, नॉट अ पेरेंट्स, नॉट अस, विथ योरसेल्फ, इफ यू कैन सिट अपने घर पे प्रॉपर्ली 2 से 5, 2 से 5 नहीं, 1:45 से 5 o'clock खुद को 15 मिनट दे, अभी से प्रैक्टिस कर एक बार कि 1:45 से 2 o'clock में वो पेपर देखूंगा, एंड एग्जैक्टली 2 o'clock मैं उसको लिखना स्टार्ट करूंगा, और फिर देख 5 बजे तक तू कितना कर पाता है. आई एम वेरी मच श्योर अगर तू पहली बार पेपर लिख रहा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 75 to 80 मार्क्स, इतना ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे. एंड जस्ट इमेजिन दिस इज द रियलिटी चेक फॉर यू. अगर आप ये नहीं करते हो फिर सीधा जाके एग्जाम में होता है कि सब पेपर छूट गया. सो बेटर एक बार आप घर पे एक बार वो पेपर आपका छूट जाए, जिसे एग्जाम में यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, तो एक बार आपको घर पे वो करना पड़ेगा. एंड पेपर आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा, लाइक आई सेड, आईसीए की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट पेपर, लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर लो, ठीक है, उसका प्रिंट आउट करवाओ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन का, एंड उसको आप सॉल्व करो. वो आपके एग्जाम के फॉर्मेट में ही है, सेम वेटेज ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से बना हुआ है. 2 मॉक टेस्ट पेपर हो गए, मॉक टेस्ट पेपर 1 and 2, कोई भी एक ले और उसको सॉल्व कर. एक इज इनफ, टाइम है तो 2 कर, बट एक आपको कम से कम मॉक टेस्ट पेपर करना ही पड़ेगा, जिससे आपका ये जो ब्लैंक आउट होने वाला सीन है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा सर. Absolutely. Thank you, sir, for answering that question. And ये जो ICAI के mock test paper है, I have to give you my own experience, students. Okay, mock test paper of ICAI जो last series होती है ना, generally students उसको छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि वो एकदम last minute पे होती है सर. इसके पहले के जो मई के हैं वो तो बहुत सारे बच्चे करके बैठे हैं, लेकिन ये जो जून सीरीज है, लास्ट मिनट है, टाइम नहीं है, नहीं पढ़ना है, सब जगह से उन्होंने अपने आप को हटा दिया है, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, सब जगह से. तो अब वो उसमें क्या वो भी हट गया. वो, हाँ, तो वो लास्ट पेपर नहीं कर रहे हैं. मेरे साथ हुआ है ऐसा, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट फाइनल मॉक टेस्ट पेपर हैज डायरेक्टली कम इन द एग्जाम, एंड मैं एक या वो, दो क्वेश्चन आ जाता है. और लॉ के पेपर में ही हुआ है सर, 4 marks क्वेश्चन, एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट इन माय फाइनल सीए एग्जाम्स. ओके, एंड I was feeling, even though I passed, I secured मतलब 60+ in that exam, still I was feeling कि यार shit, अगर मैं वो लिख लेती तो और 4 mark मिल जाते, right? अब अगर आप 60+ वाले स्टूडेंट नहीं हो, मान लो 36 पे आके अटक गए, okay, how bad will you feel? वो क्वेश्चन लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में था, it was not out of syllabus, it is because you did not see that latest mock test paper. तो अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट क्वेश्चंस देख लेना, पढ़ तो लेना. ओके, सो प्लीज एटलीस्ट गो थ्रू दोस न्यू क्वेश्चंस दैट आईसीआई is putting in their mock test series, right? So that is one advice that is very practically coming from my CA final days. Okay, now there are a few questions related to direct questions, sir. जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस तो बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में आई टोल्ड यू, एक एग्जांपल लेते हैं. सेक्शन नंबर 69 की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
अब ऑब्वियसली बात है उसके अंदर से थियरी क्वेश्चन ही आ सकता है। नाउ व्हेन आई एम टेलिंग यू कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से उसको एक बार गो थ्रू करना है कि ठीक है सर उसके अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हैं एंड 5 उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ये 4 + 5 टोटल 9 पॉइंट्स हैं जो 6 मार्क के लिए, इवन 7 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है। अब उसको आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ सेम लैंग्वेज रिप्रोड्यूस नहीं करना। इट हैज टू बी 70% के आसपास मैचिंग, ठीक है, नॉट 100%, वो मैं भी नहीं कर सकता 100%, तो 70% इतना मैचिंग होना चाहिए। एंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट है, एटलीस्ट वो थियरी क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने चाहिए, बिकॉज मैं आपको अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको हर एक चीज आनी चाहिए। द टाइम इज नॉट दैट। द टाइम इज कि अभी आपको जो इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस हैं वो एटलीस्ट सारे के सारे आने चाहिए, जहां से थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, जिनका लिस्ट लाइक आई सेड जैसे सेशन खत्म होगा आपको हम फटाक से दे देंगे। Right. Okay. Thank you, sir, for sharing that. एक question आया है, Priyal has asked in the chat box कि अगर 6 marks का question है, sorry, हम्म। एक second, there is a lot of questions that are coming in the chat box. ऊपर ऊपर जा रहा है. Okay. Question is, for example, related to foreign company. तो सिर्फ definition लिख दे and provision, क्या लिखा है, एक second ना, डेफिनेशन ही लिख सकते हैं ना, प्रोविजन में तो आंसर का लेंथ स्मॉल होगा, तो 6 marks मिल सकते हैं क्या? सी, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर क्वेश्चन नंबर 6 का सी, माइक एलएलसी करके फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब वो 3 मार्क का था, तो पहली बात है तो भूल जा कि फॉरेन कंपनी जैसा जो बकवास टॉपिक है उसे 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। 3 मार्क या तो 4 मार्क का आएगा, जिसके अंदर आपको जो डेफिनेशन लाइक आई सेड वो आपको उसका आपको 2 मार्क मिलेगा, एंड कंक्लूजन का आपको बेसिकली 1 मार्क मिलेगा। लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू, एक सेकंड मैं आपको बता ही देता हूँ ना। द लास्ट अटेम्प्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, I'll go to CA Foundation Law, CA Foundation Law के अंदर I'll go to लॉ बैंक, लॉ बैंक के अंदर पास पेपर्स के अंदर दिसंबर 23 क्वेश्चन नंबर 6 का सी, माइक एलएलसी, देख लेते हैं एक बार। ओके, हियर वी आर, ठीक है। ये क्वेश्चन और एक और भी था, सेम प्रोविजन, मिल जा मिल जा मिल जा। देख ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2-2 4-4 मार्क के, जिसके अंदर वो थियरी वाला पार्ट होगा, तो वो क्वेश्चन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। सर आई थिंक द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि मान लीजिए 6 mark का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट बस है से। ना, ये निकाल ही लिया, ये भी गो 6 मार्क का क्वेश्चन एक ये रहा। डिस्कस द हाँ, रूल रिगार्डिंग पार्टनर्स implied authority to bind the firm for his acts, also explain the situation where partner has no implied authority। आपने गलती से पढ़ा हुआ है तो आपको याद आना चाहिए, दिस इज बेसिकली सेक्शन नंबर 19 रेड विथ सेक्शन नंबर 22, उसका एक क्वेश्चन है, ए से लेके एच तक पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस इज आउटराइट थ्योरी क्वेश्चन। अब आपको ए से लेके एच पॉइंट्स आने ही चाहिए। अब ए से एच के ऊपर आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है, एंड जैसे वो इंट्रोडक्शन खत्म होता है आपको तुरंत वो ए से एच पॉइंट लिखना है एंड कंक्लूजन देना है। नॉट लाइक केस स्टडी फॉर्मेट, जैसे एक नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्मेट में बोल रहा हूँ। जैसे if I just happen to take out the answer उसका ये रहा, देख ए टू एच सेक्शन नंबर 19, यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये रहा सर सेक्शन नंबर 19, आपको पॉइंट्स दिखेंगे ए से लेके एच। तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट, और जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, आपको ऐसा डर नहीं लगेगा जैसे हम ये सब कैसे लिखेंगे, नहीं लिखना है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे ये वाला पार्ट कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है, एंड डायरेक्टली जंप टू ए से लेके एच। तो अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, बेयर मिनिमम वुड बी 5 आउट ऑफ 6, बेयर मिनिमम। और अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली 6 on 6। अब वो 1 मार्क लूज कहां पे होगा, शायद मे बी वो यहाँ पे आपका 1 मार्क काट ले, बट ठीक है, लेट इट गो। तो तेरे को 6 में से 5 मिल रहा है, बी हैप्पी फॉर दैट। दिस इज हाउ यू डील विद द सीन। right. Thank you, sir, for actually practically showing us. A lot of times I have seen students जो मॉडल आंसर पेपर देख लेते हैं आईसीआई का, and then they start feeling कि मैम इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखेंगे तो पेपर कंप्लीट कैसे होगा। So I think sir has already answered कि उन्होंने देखो इतना बड़ा आंसर लिखा है बिकॉज वो आपको पूरा प्रोविजन बता रहे हैं कि देखिए exactly, बुक में से कॉपी करके उनको पेस्ट करना है ना। देखो थोड़ी ऑप्शन है कॉपी करके पेस्ट करने का, तेरे को तो लिखना है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट द होल ऑफ इट। सिलेक्टिवली जो इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ वो लिखना होता है, तो उसमें आप टेंशन नहीं ले सकते कि सर इतना सारा हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिखना है। right, right, right. सर एक स्टूडेंट है, आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर हर, आंचल ही उसका नाम है, आंचल शाह। शी इज बीन कॉन्स्टेंटली आस्किंग की लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। आई थिंक आंचल, लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स की आपको जरूरत नहीं है,
ओके, व्हेन यू आर स्टडिंग लॉ, टेक्निकल वर्ड्स अगर आपने समझ लिया तो वो अपने आप आपको याद रह जाएगा, राइट? तो उसके लिए लिस्ट आपको कोई जरूरत नहीं है। आई जेन्युइनली बिलीव दैट। ओके, सो आप खुद क्रिएट कर सकते हो वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। यस, वो सर मुझे देने वाले हैं, जो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम की लिंक लास्ट में मैं दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज रिलेटेड टू स्पीड आंसर। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। कई बार 100 मार्क का पेपर लिखने की कोशिश करते हैं बट अटेम्प्ट कर पाते हैं 80-85। इज दिस नॉर्मल या पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए? मैम टू बी ऑनेस्ट 90 मार्क्स इतना आपका होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर 90 मार्क्स इतना हो रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट यू विल बी गेटिंग अराउंड 65 के आसपास। अगर आप 75-80 मार्क का अटेम्प्ट करो देन इट इज अ रेड फ्लैग, इन द सेंस सर 45 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, अज्यूमिंग कि आप मीडियोकर बच्चे हो हमारे जैसे, ठीक है। तो आपको अब जैसे लाइक आई सेड, एक पेपर कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देयर हैज टू बी अ रियलिटी चेक, ठीक है, एक प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल फाइनल मैच। एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेट्स के अंदर, एंड दैट इज व्हाट इज, एक पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली 5 बजे अपना पेन छोड़ दे और देख तू कितना अटेम्प्ट कर पाया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि एक 100 का पेपर 100% लिखना ही चाहिए। सो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट ओके दिस 100 मार्क्स पेपर, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू, माय सीए मेंटर। ओके, देयर इज अ वेरी स्मॉल fee attached to it, but if you are interested I will be sharing a Google form. So people who want to write a 100 marks paper, please fill that Google form. We will be attaching a very small fee to it, and then you can go ahead and just start writing those papers. Okay, sir, I think there are a lot of students who are there from your class who are here. So everyone in the chat box, agar aap already Vishwanath sir se pad chuke ho, tell me how is it to study from him in a class. Come on, tell me in the chat box, jaldi batao. Aap already Vishwanath sir ke student ho. People start best experience Janvi, best sir ever, Ankit keh raha hai. Amazing sir, Siddhi, Rakhi Singh, best, Krishna, blessing, Lokik, honored, amazing, very awesome, jolly lectures, king of law, okay, grateful, best, bestest, super fun, amazing, law ka master, amazing, awesome, 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 best sir. I am from his online batch, superb, examples are perfect, king of law, law ke god, he is the one and only, superb. Okay, so where does sir teach? Agar sir se seekhna hai, so I think sir is teaching at Ednovate, right? Ednovate के faculty है sir. So sir थोड़ा सा आप हमको बता सकते हैं Ednovate के बारे में, and what is your class looking like? You know, what is that 75 list of questions? How is it to be a student at Ednovate, and how is it to be a student at Vishwanath sir's class in Ednovate? I'll just let you know the efforts that we put in, जो obviously बच्चों को नहीं दिखता, that is like behind the curtains. Like I just show you the notes of mine, जो हमने बोलते हैं ना एग्जाम के एक दिन पहले LDR होता है, ठीक है, दिस इज दैट LDR जो लाइक द क्लासेस आर प्रिपेयर्ड। मेरे को इसके अंदर कुछ अराउंड 12 डेज लगे आपके इसको बनाने के लिए। जस्ट एक बार सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, दिस इज मियरली 43 पेजेस विच बेसिकली कवर्स योर 82 मार्क्स, ऑब्वियसली आउट ऑफ 120 बोल रहा हूँ, 82 मार्क्स आउट ऑफ 120 जो हम आपको कवर करा सकते हैं 4 आवर्स के अंदर अक्रॉस इंडिया। कोई नहीं कर सकता सर ये 43 पेजेस, 82 मार्क्स आउट ऑफ 120, 4 आवर्स, विच ऑब्वियसली द सेशन विल बी ऑन 28th जब आप एग्जाम देके वापस आएंगे, ठीक है, अपना अकाउंट्स का एग्जाम आप देके वापस आएंगे। दिस विल बी देयर 7 to 11 इज व्हाट वी हैव प्लान्ड, ठीक है, उस दिन शाम के टाइम पे ही। एंड द रीजन फॉर दैट 7 to 11 टाइमिंग इज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 21st का आपका जो फुल डे है, दैट हैज टू बी योर ओन, जिसमें आप खुद कर रहे हो। आपको जहां पे डाउट्स है, आपको जाके तकलीफ है, आपको जो लगता है आपको रिवाइज करना चाहिए, वो 1 फुल डे आपका खुद का होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी समथिंग जो आप मुझे डिवोट करो। आपको मुझे ये डिवोट करना है। क्यों सर? अकाउंट्स का एग्जाम देकर आए हैं, देख अगर एग्जाम अच्छा गया, वेल गुड इनफ, आपका मूड अच्छा होगा। एग्जाम आपका इतना अच्छा नहीं गया, डिप्रेस्ड होगा। अब अगर तू खुद से पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, द होल डे, शाम को 7 से लेके 12 तक, टिल द टाइम यू स्लीप,
आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि यार ये सही हुआ, ये गलत हुआ, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, उसका बैलेंस शीट टैली हो गया, जो भी अकाउंट्स में जो भी आप करते हैं उन सबसे आप दूर रहोगे अगर आप ये लेक्चर में हो तब। तो आपका जो टाइम है जो विच इज वल्नरेबल ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब वो होगा नहीं। एंड 4 आवर्स के अंदर मुझे नहीं लगता अक्रॉस इंडिया कोई आपको 82 मार्क्स इतना कवरेज दे सकता है। इफ यू जस्ट हैपन टू सी द नोट्स जो हमने एडनोवेट के अंदर बनाए हैं, विल जस्ट सी नोट्स को इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है, देख मेरा नाम विश्वनाथ, ऑब्वियसली टेकिंग द क्रेडिट्स वेर एवर पॉसिबल। यहाँ पे यू विल सी इन नोट्स के अंदर अनलाइक अदर क्लासेस एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे ये सब ऑलरेडी भरा हुआ होता है, हमने उसको ब्लैंक रखा हुआ है। आई वुड वॉन्ट कि इसको आप उस सेशन के अंदर जब मैं लिखूंगा आप भी मेरे साथ साथ लिखें, बिकॉज जब आप उसको लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में छप जाएगा सर। तो यूल सी थ्रू आउट द लाइक दीज नोट्स आपको सब जगह ब्लैंक ही मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब जगह आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, ऑल दीज प्लेसेस जिसको अपन भरेंगे उस सेशन के अंदर, यूल सी एवरीवेयर दिस ब्लैंक। सो मेनी चार्ट्स, सो मेनी डायग्राम्स जो ऑब्वियसली आईसीए के मॉड्यूल में नहीं है ना, आपके XYZ फैकल्टी ने आपको दे रखा होगा। दिस इज एक्सक्लूसिव माई क्रिएटिविटी जो हम आपको देंगे बेसिकली उस सेशन के अंदर, याद करने का तरीका एंड सो मैनी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, दिस इज एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम है। इफ यू जस्ट हैपन टू लुक एट दिस डायग्राम एंड एक बार जब मैं बोलूंगा उसको आप सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा सर। एंड दिस इज हाउ वी स्टडी बेसिकली अगेन। ठीक है, एवरीवेयर यूल सी द चार्ट्स एंड एवरीथिंग। So this is what we happen to do this at Ednovate classes and आप वो सेशन ऑब्वियसली अटेंड कर सकते हैं जो यूट्यूब पे होगा। मैं आपको अभी से बता दिया 28 को जब अकाउंट्स का पेपर देकर आएंगे उस दिन एडनोवेट के चैनल पे आपको मेरा लाइव सेशन मिल जाएगा विच विल बी 7 to 11। तो आपको अटेंड करना ही है। 4 hours 43 पेजेस 82 मार्क्स, किसी का पप्पा नहीं करवा पाएगा सर। तो कृपया आ जाएगा, हम आपका वेट करेंगे। Absolutely. That is amazing, sir. Thank you so much for sharing this. So I think this is going to be very, very game changer for all our students. Thank you for sharing this. And अभी तक भी आपने इतने सारे golden nuggets share किए हैं. I just wish कि मुझे मिला होता during I was studying for CA ये exam. मुझे भी किसी ने दिया होता है ऐसा। I हमारे swear, ऐसा I कोई think था ही नहीं, देयर वाज नो वन टू गाइड अस लाइक मैम मी, वी मेड आवर ओन पाथ। हमने धक्के absolutely. खा के ठोकरे खा के यू नो फेलियर फेस करके ये सब सीखा है। जो आपको रेडीमेड स्पून फीडिंग किया जा रहा है ये हमने लाइक यू नो ठोकरे खा के सीखा है। तो यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाटएवर मैम इज सेइंग और व्हाटएवर आई एम सेइंग। आपको इसका अटमोस्ट एडवांटेज लेना ही चाहिए। Right. Absolutely. So thank you, sir, for sharing with us everything related to law, 1.5 day strategy, and how to study law, important section numbers, etc., etc. Please let us know in the chat box, everyone. Just give one word, okay, for sir to thank him for being here with us. Everyone, please put a thank you for sir in the chat box. I'm just changing the chat so that sir can read the messages. Okay, yeah, just go ahead, give sir a big thank you for being with us today and answering all the queries related to law. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, sir. Okay, I can see lots and lots of messages coming in. Superb, superb, superb. Okay, just hold on, everyone. I'm going to share certain important links before we close this session. So just hold on, everyone. Just hold on. Okay. But I just want everyone to first thank sir. I can see constantly messages आ रहे हैं sir. So yeah, I think students are very, very grateful that आपने ये session host किया. You've answered all your questions and queries. Thank you so much, sir. Okay. We are lucky. Thank you, God. Superb. Okay. So I think, sir, questions है. बहुत सारे questions है. I think ये सारे questions, sir, 20 तारीख के session में आप attend कर लेना sir का. शाम को 7 बजे जैसे कि sir ने बताया. 7 to 11, please attend with sir on Ednovate का YouTube channel. You will get most of these questions answered. भूल जाओ, अभी तुम विश्वनाथ sir के इसमें आ गए हो. Forget everything. Okay, just trust him. You will be नैया पार हो जाएगी लॉ में. ओके, जिसमें डर लग रहा है नैया पार हो जाएगी लॉ में. सो डोंट वरी. ओके, नाउ we are going to share the Telegram channel link right now. Okay, so everyone please stay here. Mohit, please share the Telegram link so that we can share the important section numbers जो अभी सर हमें देने वाले हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे. सो प्लीज मोहित टेलीग्राम चैनल की लिंक आप दे दो. एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू राइट द 100 मार्क्स टेस्ट पेपर, मोहित इज आल्सो शेयरिंग अ गूगल फॉर्म लिंक.
तो ये 2 लिंक्स आपके साथ शेयर हो रही है, टेलीग्राम की एंड गूगल फॉर्म की। अगर आप टेस्ट पेपर लिखना चाहते हो, there is a small fee of 99 rupees, that's it. Okay, we're just charging rupees 99, that's it. You write 100 marks paper. See, we have to respect the faculty is going to check your law papers. Okay, that is why we have a small fee attached to it. Rupees 99, go ahead, write 100 marks papers, test yourself. ओके, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो ब्लैंक आउट का सिचुएशन होता है ना, वो एग्जाम में मत करना, अभी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मुझे और सिर्फ सर को पता चलेगा रिजल्ट। लेकिन जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट होगा ना, वो दूर दूर के रिलेटिव्स भी कॉल करके पूछेंगे, अरे आज तो हेतवी का रिजल्ट था ना, क्या आया? साक्षी, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, कितना परसेंटेज आया? रोहिणी, तुम पास नहीं हुए क्या, क्या हुआ? सो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी प्रैक्टिस कर लो, गो थ्रू द एग्जाम लाइक सिनेरियो राइट नाउ, ओके, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके मैम, प्लीज कीप such amazing sessions for other subjects also. This lecture was amazing. Yes, Bhumi, we are going to do that. The credit goes to sir for making this last 1 hour so productive for us. Thank you so much, Vishwanath sir, for being with Thank you, us ma'am. today. Thank you for having me here. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us today. All right, everyone else, we are still here. Please join the Telegram channel. Once you've joined Telegram, just put done in the chat box. जल्दी से हमको डन 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 बता दो in the chat box that yes, you've joined in the Telegram channel so that we can share the important section numbers. Okay, superb, superb, superb. Join, done. Okay, great. Google form की लिंक भी वापस से शेयर कर दीजिए मोहित, so that students who are interested in writing 100 marks paper, we can help them. Okay, all right, superb है, बहुत सही है. Okay, great. All right, everyone, we would like to get your feedback on this session. Okay, and how you give us the feedback is please go to our Instagram channel and tell us. Okay, tell us how did you like it. DM करो, मैं खुद Instagram channel handle करती हूँ हमारा, so I would love to know your thoughts about this session on the Instagram DM. प्लीज मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, माई सीए मेंटोर का इंस्टाग्राम चैनल है, मोहित ने अभी डाला है चैट बॉक्स में. ओके, सो प्लीज गो अहेड एंड इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे बताओ कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सो दैट वी कैन कीप डूइंग सच सेशंस फॉर अदर सब्जेक्ट्स विद विश्वनाथ सर, विद अदर फैकल्टीज. ओके, वी कैन help you crack the CA exams. Okay, so please go ahead and tell us on Instagram. Fill the Google form for writing the 100 marks paper. Join the Telegram channel जहाँ पे विश्वनाथ sir very graciously has agreed to give you list of important sections. Okay, with this we would like to close the webinar, but before we go, please come on camera so that we can grab a screenshot. जल्दी से आ जाओ, sir के साथ एक photograph click करेंगे. जल्दी everyone come on camera, come on the camera, come on the camera. All right, superb. ओके मोहित, एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने कैमरा ऑन किया है. आई थिंक हैविंग अ हार्ट विल बी वेरी नाइस. अगर आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों को मेरा विंडो दिख रहा है, मैंने एक हार्ट ये किया है. सो प्लीज लेट्स हैव हार्ट्स फॉर विश्वनाथ सर बिकॉज दिस सेशन वाज सो अमेजिंग. थैंक यू विश्वनाथ सर. लेट्स हैव अ हार्ट. All right, superb. I hope you've grabbed the screenshot. Okay, smile everyone. 1, 2, 3, smile. Okay, wonderful. Thank you so much everyone for joining us. You may leave now. Thank you so much. All the best. Telegram All the team. best everyone. I'll share the section list soon. ठीक है? Thank you sir. Thank you so much. All right. Everyone, Telegram link is in the chat box. Mohit, please एक और बार share कर दो. Google form की link for those people who want to write the 100 marks test paper and the Instagram channel link. Please DM करो कैसा लगा ये session. Sir will also be very happy. I will share screenshots with sir. So please मुझे DM करो Instagram पे my CA mentor के channel पे, so that we know how did you like this session. We love your feedback. Thank you so much everyone. Bye. Bye. Leave. People want to still be here. Sir और कुछ तो नहीं बता देंगे? सर कुछ बता देंगे?
सर नहीं बता रहे अभी और कुछ, प्लीज जाओ। टेलीग्राम पे आपको सब बता दिया जाएगा, डोंट वरी, जस्ट ज्वाइन द चैनल, आपको टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा, यस, एंड एवरीथिंग। प्लीज जाओ पढ़ाई करो, सर ने ऑलरेडी हाँ बहुत कुछ बताया है। सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला, जाओ एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, देन कम एंड थैंक सर लेटर, ओके? कि सर पेपर बहुत अमेजिंग गया। ओके, गो 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 गो, बाय 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 साक्षी, गो बाय मधुरा, बाय 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 योगेश, बाय ज्योति, बाय अंकिता, वरद, सिद्धार्थ, गौरव, बाय बाय एवरीवन, सी यू बाय बाय। ऑल राइट, बाय बाय बाय, गो 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 गो, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो, एंड मेक श्योर कि आप गूगल फॉर्म भर रहे हो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो।